माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, नमस्कार सर। प्रश्नकाल 61 श्री जसबीर सिंह गिल। सर क्वेश्चन नंबर 1 सर 61 61 सर। Your answer is laid on the table of the House. सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी मिडिल ईस्ट देश हैं, चाहे सेंट्रल एशियाई देश हैं, वो आज खाने पीने की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, चाहे अफगानिस्तान की हम मदद भी कर रहे हैं, वहाँ भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। पंजाब के किसानों ने गोदाम भरे हुए हैं, सब्जी फल का उत्पादन इतना है। अगर ये वाघा बॉर्डर और खालड़ा बॉर्डर से ये ट्रेड खोल दें तो मैं समझता हूँ हमारे किसान का भला होगा और उधर का भी उनको फ़ायदा होगा। क्या कोई तय सीमा है जिस पे आप ये सेंट्रल एशियाई देश, पाकिस्तान को छोड़ दिए हम हर लड़ाई में देश के साथ है। मेरी आपसे गुजारिश है, क्या मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशियाई देशों के साथ कोई भी कुछ तय सीमा पे कुछ ये व्यापार शुरू होगा पंजाब के लैंड रूट से? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारा जो ट्रेड रूट्स हैं, लैंड रूट्स हैं, वो भारत की तरफ से हमने बंद नहीं किए हैं। ट्रेड पर किसी प्रकार की रोक हमने नहीं लगाई है। लेकिन जो विषय आपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को लेकर या अफगानिस्तान को लेकर उठाया है, हमें समझना होगा कि कोई भी ट्रेड है उसका ट्रांजिट अरेंजमेंट वाया पाकिस्तान ही होगा, और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो रूट्स को ओपन करने की और ट्रेड को रिज्यूम करने की पाकिस्तान पर ही है। क्योंकि ये जो बैन लगाया है ये यूनिलैटरली पाकिस्तान ने इम्पोज किया है, भारत ने इम्पोज नहीं किया है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि ट्रांजिट उनकी टेरिटरी के थ्रू ही होना है। सभापति जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान से कोई व्यापार किसी बंदरगाह से हो रहा है? गुजरात की कुछ बंदरगाह से पाकिस्तान को सामान क्या जा रहा है, कुछ महाराष्ट्र की बंदरगाह से कोई सामान पाकिस्तान को जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारा जो भी ट्रेड अभी तक पाकिस्तान के साथ होता था, अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू होता था, कराची पोर्ट के थ्रू होता था। इसके अलावा अभी हमारा लैंड रूट से तो नहीं हो रहा है, लेकिन सी और एयर रूट से कुछ जो हमारा व्यापार है वो JNPT मुंबई, ICD तुगलकाबाद, मुंद्रा SEZ, ACC मुंबई, ACC हैदराबाद, ACC अहमदाबाद, इन सारी जगहों से अभी हो रहा है। डॉक्टर टी सुमति। Thank you very much, Speaker Sir, for having given me this opportunity to raise a question. Sir, I would like to inform this August House through you, sir. Tamil Nadu has recently organized a successful Global Investors Meet 2024. And it has been proven as a state with a very eco-friendly system, investing the open investors. And as many as 631 MOUs were signed, with an investment commitment of 60,064 180 crore and a lot of job opportunities enforced. Sir, with this scenario, considering TN's commendable achievement, I would like to ask the Minister through you, sir, how does the ministry plan to integrate the state's success into its broader agenda of enhancing ease of doing business and attracting investments on a national scale? Sir, how does it relate to the subject under discussion? I fail to understand. I would like to honourable member to clarify. Question number 62, Sri Rajmohan Unnithan. माननीय मंत्री जी पर रखा गया है।
Benny Banan. Sir, this question is regarding the railway overbridge. Sir, in my constituency, there is a railway station named Angamali, and Angamali is one of the most important railway stations in Kerala. This station is known as Angamali for Kaladi, because the Kaladi, the birthplace of Adi Shankara, is very near to this station. And nowadays, this international airport of Cochin Airport is very near. But, sir, Angamali is one of the rare railway stations having level cross across the platform. This proposal for ROB has been pending for the long time. Sir, this area, there is a large godown for Food Corporation. The head office... please. Bethiye. The head office of State Bamboo Corporation, storage division of KSCB, and there are 200 small industrial units are there. And, sir, this railway gate is which more than 85 trains pass through a day. And there is a proposal. It has accorded sanction for a proposal for ROB in this area by the railway board in a sharing base. So would you please, whether you give immediate steps to start the work there? Manya Adhyakshi, this flyover ROB to be constructed on the LC gate number 280. This is actually a case study. A case study in which how the lack of cooperation from a state government can lead to serious lack of development. Sir, this ROB on Kutikulam was sanctioned in 2006 and 2007. State government had actually requested that they should be doing this work. So the work was entrusted to the state government. State government took the work. From 2006, 2007, all the way up to 2019, 2020, the state government could not execute the work. It's very unfortunate that our Prime Minister always says, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. Sabka Prayas, all of us have to make an effort, then only things can move. Sir, honorable member, please listen to the entire answer. Sir, the project had to be removed from the pink book because of the lack of performance on part of the state government's company which was given this work. Then the project was reinstated once again in 2021. I'm very sadly saying it, sir, even today, the government of Kerala has absolutely no interest in development of railways. Sir, Honorable Prime Minister has given 2,191 crore allocation for Kerala, but the state government, which was getting only 372 crore earlier, but the cooperation from the state government is lacking, due to which the state government, the projects in Kerala are suffering, sir. Sri Narayan Bhai Kawadia. Kachadia ji. Narayan Bhai. धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी रेलवे मंत्रियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश में रेलवे के अंदर जो काम हुआ है पिछले आज़ादी के बाद नहीं हुआ था, इतने 10 साल में काम हुआ, इसीलिए मैं मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे क्षेत्र अमरेली गुजरात में 1962 में जो रेल पटरी लगी थी वो हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद वहाँ गेज कन्वर्जन का काम हुआ है। तो आज मैं मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देता हूँ। और एक मेरा छोटा सा इश्यू है, जो अमरेली खिजड़िया से अमरेली, अमरेली से चलाला, चलाला से धारी, धारी से विसावदर, विसावदर से वेरावल सोमनाथ, वो पूरा गेज कन्वर्जन का प्रपोजल रख दिया गया है, लेकिन फॉरेस्ट के हिसाब से अभी अटका हुआ है। तो खिजड़िया से अमरेली तक का गेज कन्वर्जन का टेंडर भी निकल चुका है। तो मैं अन्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वो काम कब शुरू होगा। और हमारा ढस्सा से महुआ तक और ढस्सा से जेतलसर जूनागढ़ तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत स्लो चल रहा है। तो उसके लिए भी मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द वो काम ज़्यादा गति ले। और हमारा नया अमृत भारत स्टेशन, उसका काम भी बहुत, मेरे क्षेत्र में 4 नया स्टेशन बन रहा है, तो उसका काम भी स्लो चल रहा है। तो मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि जल्द से जल्द वो काम पूरा हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिलो जान से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष जी, जिस सेक्शन की बात मान्यवर सांसद जी कह रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है गुजरात में। अमरेली से विसवदार खेजड़ली होके आगे सोमनाथ की तरफ जाने वाला जो उसमें जो गिर का फॉरेस्ट है, गिर के फॉरेस्ट के थ्रू इसका अलाइनमेंट जाता है सर। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही सोचे समझे तरीके से जो सेक्शन गिर के फॉरेस्ट को अफेक्ट नहीं करता है वो सेक्शन अप्रूव कर दिया गया है और अभी 3-4 महीने पहले ही ये फैसला लिया गया है। माननीय सांसद जी के पास पूरी जानकारी भी है और ऑलरेडी उसका टेंडर करके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास स्टार्ट कर लिया गया। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I may be indulged to deviate a little from the core of the questions. Honorable Minister, without having any compunction of qualm, I must say that you are an affable and competent minister. But at the same time, I will simply charge you that you are not as good as your word. You are not as good as your commitment. In the house itself, प्रश्न पूछे सर प्रश्न यह कि 2014 साल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 131 आरओबी जिसको कहते हैं कि 95 तला आरओबी आप जानते हैं वो अभी तक खत्म नहीं है, आधा अधूरी पड़े हुए हैं। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन यू कैन नॉट सार्क योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सेकेंड थिंग, आपने ये वादा किया था ये सदन के अंदर, मैं नहीं बहुत सारे एमपी एक साथ आपको ये गुजारिश किए थे कि आप कोविड के बाद एक जगह 10 रुपया लेते हैं भाड़ा, दूसरी जगह 30 रुपया लेते हैं, एक ही दूरी है, दूरी एक है। गंगा के इस पार जिसका भाड़ा 10 रुपया, गंगा के उस पार 30 रुपया, कैसे चलते हैं इस तरीके की एनोमली? फिर भी आप इसको करेक्ट नहीं करते, ये नहीं सुधारते, आप बार बार अपने वादा करते हैं नहीं करते कुछ। मान्यवर सभापति महोदय, पहले तो मैं मान्यवर एलओपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत सरकार के काम की, मोदी जी के काम की तारीफ की और आपकी ये तारीफ उस हाउस में भी बहुत ही, वहाँ भी एलओपी साहब ने इस बार तो घोषणा ही कर दी थी, घोषणा ही कर दी थी। कहा रेल मंत्री जी की तो तारीफ की है ना। तो भारत सरकार का काम सर, मोदी जी का काम आज सारा देश देख रहा है। सर आपने जो फ्लाईओवर की बात उठाई माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुशी की बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पे 1000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस देश भर में बने। तो मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ एक राज्यों में दिक्कत है, बाकी सब जगह बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। जहाँ जहाँ कोऑपरेशन, हम तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ, प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक फेडरल स्ट्रक्चर पे विश्वास है, इसीलिए एक ओपन माइंड के साथ हर राज्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने इतना एलोकेशन दिया है, अब आपकी तरफ से जो सहयोग हो सके वो सहयोग करिए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए जहाँ से बड़े लंबे समय से रेलवे मंत्री होते थे, बड़े लंबे समय तक रेल मंत्री होते थे, वहाँ पे मिलते थे वेस्ट बंगाल को मात्र 4380 करोड़ 2009 से 2014 में। आज मोदी जी वेस्ट बंगाल को 13,280 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 13,280 करोड़। आप अगर सुनिए साहब, सुनिए हाँ, प्रश्न का जवाब सुनिए, जवाब सुनिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी कुछ स्पष्टता हमारे माननीय सदस्यों को रखनी पड़ेगी। संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है, लैंड एक्विजिशन में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में राज्य सरकार की मदद चाहिए ही चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न माननीय एलओपी साहब का प्रश्न मेन प्रश्न से अलग था, फिर भी मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि एज फार एज पॉसिबल हर एक आरओबी में राज्य सरकार के सहयोग से, फ्लाईओवर के लिए राज्य सरकार के सहयोग से तेजी से प्रयास चल रहा है। माननीय एलओपी साहब के साथ मैं पर्सनली भी बात कर चुका हूँ। इस आरओबी में जो लैंडिंग एरिया है
उसमें हमको मदद चाहिए राज्य सरकार की। जैसे ही राज्य सरकार से मदद मिलेगी हम काम करेंगे। और दूसरा जो फेयर का रैशनलाइजेशन की बात है वो ऑलरेडी विचाराधीन है रेलवे बोर्ड में। जैसे ही फैसला होगा निकल आएगा। तो जवाब तो दे दिए आप क्या? क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन उत्तेजना में भी एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है बात करने का। और जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कदापि भी किसी को स्वीकृत नहीं हो सकती है। आपकी शब्दावली को आप विड्रॉ करिए। आप जरा ढंग से अपना प्रश्न उठाइए। क्वेश्चन नंबर 63 महाबली सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। बाद में उधर नहीं रहते आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पर प्रस्तुत है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद बिहार में 35 चीनी मिलें काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे 26 चीनी मिलें एक एक करके बंद हो गई। मात्र बिहार में अभी 9 चीनी मिलें काम कर रही है महोदय। हम माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि जो चीनी मिलें बिहार में बंद हैं, क्या उस चीनी मिलों को आप चालू करना चाहती हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ये चीनी मिल लगाना केंद्र सरकार का विषय नहीं है। इसमें 2098 में एक विषय आया था जिसमें इसको बाहर कर दिया गया था। बिहार में सदस्य ने स्वीकार किया है। राज्य सरकारें या लगाने वाले जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग के लिए इतना बहुत बड़ा अभी हाल में काम करने की बात कही है, और माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये राज्य सरकार की काम है। अरे ये तो चीनी मिल को केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को कामें करनी है। तो ये जो बंद चीनी मिलें हैं, इसको केंद्र सरकार क्या चालू करने का विचार नहीं रखती? और दूसरा मेरा अनुपूरक प्रश्न है महोदय कि जो किसान जो है ये गन्ने का उत्पादन महोदय बहुत परिश्रम से करते हैं, चाहे बिहार का सवाल हो चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, और उनका उत्पादन का सही मूल्य और समय पर उनका भुगतान नहीं होने के चलते एक साल से 2 साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर काटते रहते हैं महोदय। तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो किसानों का भुगतान सही समय पर मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति है और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। उनको महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही हैं। उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए
कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय दे के उसको समाप्त किया जा सके, गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ उससे चीनी मिलों की भी आमदनी बढ़ी, चीनी मिलें भी वायबल हो गई, उनके पास पर्याप्त पैसा आने लगा। और उसी के कारण आप देखेंगे कि गत कई वर्षों से 99% भुगतान समय पे होता है। कोई किसान का आंदोलन देश में किधर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 2013-14 में कुल जो केन का भुगतान था वो 57,000 करोड़ रुपए था और केन ड्यूज 2-2, 3-3 साल बाद दिए जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अगर 2022-23 का आंकड़ा देखें तो केन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना हो गया। उसके अलावा जो वैल्यू थी गन्ना किसानों की वो 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई और वो 1,15,000 करोड़ में मान्यवर 1,14,000 करोड़ समय पे हो गया, 99% से ज़्यादा। और मात्र 516 करोड़ यानी 99.5% पे हो गए। मान्य 516 करोड़ सिर्फ रह गए। 3 चीनी मिले अधिकांश इसमें और यूपी की है वो तीनों चीनी मिले, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की। और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से, एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई है, पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है। और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण में प्रभाव हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। तो ये जो बहुमुखी सोच है, इसके कारण आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है और देश के गन्ना किसान भी बहुत राजी खुशी आज इस काम के साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 64 सी थॉमस। नहीं है, मिनिस्टर को रिप्लाई कर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी नहीं बोल सकते सर, ये बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए। ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। रिकॉर्ड में के लिए इन्होंने कह दिया क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बकवास शब्द हटाइए, हाँ हटाइए, बकवास शब्द हटाइए। बकवास शब्द नहीं कह सकता, ये बकवास शब्द नहीं कह सकते। कि ऐसे हल्ला गुल्ला करने के बदले पहले जानकारियां निकालें माननीय सदस्य। 22-23 का पूरे देश में मात्र 516 करोड़ बकाया है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो गन्ना खरीदा गया है, ये अभी के गन्ना की बात कर रहे हैं और अभी के गन्ना का पैसा पर्याप्त मात्रा में पे हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे हैं।
Please. क्वेश्चन नंबर 64 मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आप थोड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखते हैं। शशि थरूर जी, आप हैं क्या? Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to applaud the Wise Kiran scheme, which promotes women in STEM subjects in our education system. I must say, sir, this is very, very interesting because the need is great. I have had the great pleasure, sir, of conducting, as the main speaker, a number of convocations in our country in the course of the last few years that I've been an MP, the last 15 years. And in the 75 or 80 convocations where I've spoken, it has struck me, sir, that even in institutions where women are a very small percentage of the workforce, of the student body, where women are maybe even just 25% of the student body, 90% of the prize winners, the diploma holders, the gold medalists tend to be women. This has led me to believe that the future is female, sir, and I'm glad we're doing this scheme. Having said that, however, it is also true that only 1/3 of the women, despite their great successes in the education system, only 1/3 of the women actually are in STEM careers. And what is particularly worrying, sir, is that promotions in STEM careers seem to be denied to women. We are seeing a situation in which pretty much in every STEM discipline, the top positions are regularly occupied by men. Does the government have any thought about whether there could be gender affirmative programs, not only to ensure that women who do well in their studies get career opportunities, so the number of women in STEM disciplines and careers goes up, but also whether there should be some encouragement to put women in leadership positions, because it's startling to see that when a woman and a man, even the woman with higher marks, gets into a STEM career, the man's promotion comes 2 or 3 years before the woman's does. And this is a pattern that has been studied, and I would love to know if the government has looked into the matter and has any thoughts on how to remedy it. Thank you, sir. Speaker, sir, at the outset I have to thank Honourable Member Shri Shashi Tharoor ji for having appreciated the WAS scheme, and I once again wish to reassure the entire House that this government has already been giving highest priority to enhance the role of women in every sector. And Prime Minister Modi has been reiterating this very often whenever he has a platform to speak. And he's been talking about Nari Shakti, Nari Samarth. In fact, in this House also, the very first bill that was presented was dedicated to the woman power of India. And therefore, I would like to also clarify that there is no gender bias in carrying out promotions. And you'll be pleased to know when I just cite a figure that we have, of course, as you rightly said, the number of women scientists is still lower compared to the male sites. Yes, it is, to be precise, 18.6%. The R&D projects run by women are up to 25%, but the higher education enrollment has increased tremendously over the last few years. It's gone up to 43%, which means tomorrow, these girls, when they take over those positions, the proportionate number of the working scientists will also go up to almost 50%. Now, having said that, as far as the contention that the top positions are manned only by men, I would rather say they are now being manned by women. In the sense, for example, in space, our Aditya project is being headed by a woman called Nijar from Tamil Nadu. Similarly, the Chandrayaan project, the joint director, the number 2, is again a lady called Kalpana from Karnataka. So it's not true. On the other hand, in fact, the common realization is that in the science fraternities, in the science streams, the women have already evolved from the participatory role to the leadership role. It is now they are deciding
to what extent the men have to be participants in what roles. And I think, without being boastful, the very scheme of WAS was started by the NDA government when Mr. Vajpayee was the Prime Minister, and thereafter it was taken up by Prime Minister Modi after he took over in 2014, and he further extended in the form of the Kiran scheme, which is... नहीं हुआ वो बता रहा हूँ मैं। बीच में ये हुआ कि बजट 2014 में था 44 करोड़ और 2024-25 में 135 करोड़, यानी तीन गुना बजट बढ़ा। Having said that, we are already in it, and I am glad that Kerala is also getting tremendous benefit out of it. We have started a scheme called CURI, which is providing support to women in the university levels. So incidentally, Kerala does not have a women university, but we have extended the same support to the Kerala colleges. So we have 2 in Kottayam, 2 in Thrissur, 1 in Thiruvananthapuram, 1 in Ramaswamapuram, and 1 in Allapur. So we are extensively giving support regardless of whichever the government there. Question number 65, Sri Dhairyashil Mane. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है। श्री प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में आप जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है। महोदय, कई देश ऐसे जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं भेज पाता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके। साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज़्यादा रहा। जहाँ तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं। कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर का, ट्रेड बैरियर का यदि वो सामना करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज़म्स हैं। अभी हमने हाल ही में एक टास्क फोर्स भी गठित की है। ये टास्क फोर्स एक ऐसी कोर टीम के रूप में है जिसमें 25 हमारे अलग अलग मंत्रालय, हमारे EPCs और हमारे एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स सभी लोग शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और किस कंट्री में वो कौन सा ट्रेड बैरियर फेस कर रहे हैं
उसके बारे में उनके स्पेसिफिक ट्रेड कंसर्न को समझते हैं। इन विषयों को हम आवश्यकता पड़ने पर WTO में भी उठाते हैं और अलग अलग जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, ये ट्रेड को लेके ये सवाल है और ट्रेड में हम देखते हैं कि चीन से बहुत से चीज़ें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन्स में। सर भारत में आज हम मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें, और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखें, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पर संदेह की नज़र से देख रही है, और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपने बात ये तो माननी है। चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी, आप बोलिए। माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि ये बात भूल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फ़ोन बंद के बंद पूरे के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं। इनको कभी दिखा नहीं किस प्रकार से बने बनाए फ़ोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को ये भी सूचित करना चाहूँगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फ़ोन बनाने के लिए कंपनियां आती हैं, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज़ कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फ़ोन बनना शुरू हुआ और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फ़ोन बन रहे हैं, फ़ोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आएगा, आने लगा है, शुरू हो गया। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं। उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज़ को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फ़ोन में होने से कोई भी प्रकार का सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा।
और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिल के गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कैसे PLI सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हो, लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके मुझे लगता है कोई मोबाइल फोन यहाँ नहीं बनेंगे। जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। Sir, there are lot of cases in various states in India regarding the encroachment of railway lands. Sir, the reason is railway is not utilizing their own lands. In my constituency also in Talasheri, 50 acres of railway land is still vacant. So I want to know from the government whether the Railway Land Development Authority is considering any land development project under the public-private partnership in these idle railway lands. Honorable Speaker, sir, the railway lands basically are of three natures. The majority of the railway land which is shown as vacant railway land, that is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion. As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved, which will basically add about 40,000 kilometers, 40,000 kilometer और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker, sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a very systematic way, sir. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talasheri for the development of the railway. Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji. Manikam Tagore ji. Sir, Railway launched Amit Bharat station scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts, is there any specific plan to include more stations in aspirational district? Because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivakasi and Aruppukotte stations are not included in this scheme. And I'd like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivakasi, which is a fireworks hub, and Aruppukotte, which is a handloom hub, to be included in the Amit Bharat station scheme? Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा. प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है, एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है. 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है और काम जिस तेज़ी से चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का. काम जिस तेज़ी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज़ है. आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलमपुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के
स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा। ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है। IB ईडन जी। सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ सर। आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए सर। सर, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड दिस इशू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। इट इज रिगार्डिंग 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position, and the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLD, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari Rail project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari Rail project is another classic case study in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabari Shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honorable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in Indie block. सर, मैं आभारी हूँ सर कि आपने पूरक प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर, मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का। सर, काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूंगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दानापुर मंडल भी है सर, वहां पर बेटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। सर, माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछें, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे, कैसे चलेगा बताओ? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य, प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफ़िकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके
कई समस्याओं का समाधान किया। इसलिए मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करता हूँ, एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो काम को चेंबर में लेके बात कर लेना आप। अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूँ। एक मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया। आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाएंगे। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उसकी अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा माननीय अध्यक्ष जी काम का जो डिज़ाइन हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उस डिज़ाइन को जैसे कंप्लीट होगा, ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी। एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते। पशुपतिनाथ सिंह जी। प्रश्न संख्या 67 पूछता हूँ। माननीय मंत्री। Laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज़ादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया। देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज़्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेंगे तो जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय, कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट पूछ लो जवाब दे देंगे। बहुत संक्षिप्त में है। हाँ, बहुत संक्षिप्त में है। मैं बात भी करता हूँ बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या, भौगोलिक स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया और वहाँ कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए। क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। सर, वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश
कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं ओबी डम्प्स का, उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है, बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क्स, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करें, इको पार्क कैसे करें, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसीलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 68 स्टेटमेंट। आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप पूछ ले, कोई बात। Sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Railway Minister to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara also included the Amrit Bharat scheme. The tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honorable Minister when this work will be restarted. And also, Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honorable Minister kindly reply. Honorable Speaker, sir, Honorable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. Supplementary, chalo. There is a proposal from Chenganur to Pamba, elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala, and one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Shabarimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir, and as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. Okay. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तक सदन की बैठक निर्धारित की जाए। बढ़ा दिया जाए। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी
संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3 फगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री राव साहेब दानवे। साल बरस